ਉੜਦੀ ਧੂੜ ਸੱਜਣੋਂ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸਰਦਾਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਘੋੜਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼। ਪਿੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੱਜਣੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਕੋਟ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਜੋਨੂ ਯਾਦਵ ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ਼ੇਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਲਾ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੋਨੂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹਜੇ, 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਏਕ ਮੁਖੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਕੱਲਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਟੈਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ 2 ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 4 ਦੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਬਣੂਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਕਮਾਲ ਬਣੂਗਾ। ਗਰਦਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਕਮਾਲ ਆ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੱਜਣੋਂ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਮੁਖੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਨਗੀਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਰਾਜ ਨਗੀਨਾ ਘੋੜਾ ਸੱਜਣੋਂ ਦਲਵਾਗ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਦਲਵਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਸੱਜਣੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲਾਈਨ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਨੂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਹੀ ਸੱਜਣੋਂ ਚਵਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੂਹ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਜਦੋਂ ਚਵਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਘੋੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਜਣੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਲਈ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਸੱਜਣੋਂ। ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਈ ਨੂੰ ਜੋਨੂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀਕੇ ਟੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ 19 ਇੰਚ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਨੇ ਇੰਚ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਟੀਕਿਆਂ ਟੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਐਂ ਖੱਪੇ ਖੋਲ ਤੇ ਖੱਪੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਰਾਇਡ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਟੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਲੇ ਵੱਡੇ ਘੋੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੁੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸੱਜਣੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਘੋੜਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਾਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਓ ਸੱਜਣੋਂ ਤੇ ਘੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਬੱਚੇ 1-2 ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਆ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜੋਨੂ ਸੱਜਣੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੁਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇਸ ਜੋਨੂ ਬਾਈ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੁਲੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੈ ਜੋਨੂ ਬਾਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਥਾਂ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 32 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਥਣ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ, ਓ ਹੋ ਪਹਿਲੇ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੋਗੇ ਚਾਨਣੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਲੈ ਵੀ ਸੱਜਣੋਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਜੋਨੂ। ਜੋਨੂ ਬਾਈ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਘੋੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਜੋਨੂ ਹੁਣੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਦੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਘੋੜਾ। ਪਰ ਨਾ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਗਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਸ ਡਿਟੇਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਸਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਗਾੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਸਲਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਸਲਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੋਨੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੋਨੂ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। भाई धन्यवाद, आपके पंजाब से ही तो हरियाणा बना है। पार्ट तो एक ही रहे, बड़े भाई छोटे भाई हैं। हाँ, इकट्ठे हैं भैया। किसानी आंदोलन में पंजाब और हरियाणा इकट्ठे ही हैं। जी भैया, मसले इकट्ठे हैं, लोग इकट्ठे हैं, कल्चर एक जैसा ही है। हाँ, कल्चर एक जैसा ही, सभी एक जैसे हैं जी। आपके भाई बीर साहू से मिलता हूँ तो वो भी ऐसी बात करते हैं। हाँ हाँ, हरियाणा में जो यूनिटी है ना एक जी, कि हम हमेशा पंजाब ने एज ए बड़े भाई देखते हैं। अब आपके घर में बड़े भाई हो गए तो आप क्या इज्जत करोगे, वही हमारी इज्जत पंजाब के लिए है। छोटे भाई फिर ऐसे बताओ मेरे को कि आप देखिए, आप बुली में बहुत अच्छा काम करते हैं। बुली के बारे में भी बात करेंगे, एक दो मिनट करेंगे उनके बारे में बात करनी चाहिए। आपको बहुत बड़ी पहचान दी है उसने। जी, उसी ने, बुली ने ही पहचान दी है मेरे जी। भैया घोड़ों के मामले में आज घोड़ा जी कहाँ जा रहा है? आपको क्या लगता है कि ब्रीडिंग के मसले में सुधार हो रहा है, जहाँ नस्लें ख़राब की जा रही है, मिक्स की जा रही है, कहाँ मतलब घोड़ा किस साइड को जा रहा है? आपको क्या लगता है कि घोड़े में प्योरिटी आ रही है जहाँ मिक्सिंग हो रही है? लोपोणे भाई, सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं कि घोड़ा एक स्पीसीज़ है जी, उसमें एक नस्ल है मारवाड़ी जी। बेसिकली हम मारवाड़ी रख रहे हैं जी। तो मारवाड़ी जहाँ पे डेवलप हुई है नस्ल, या जहाँ की नस्ल है मारवाड़ एरिया, जी जी, मारवाड़ एरिया डेजर्ट का एरिया है, बहुत रफ एरिया है जी। और मारवाड़ी जो नस्ल है उसका एक पर्पज़ है जी, कि वो उसका जो मेन पर्पज़ है, मारवाड़ी इज ए वॉर हॉर्स। जी। लड़ाइयों के टाइम पे मारवाड़ी उस इलाके में लड़ाई में यूज़ होने वाला एक घोड़ा था जी। तो उसके अपने कुछ स्पेसिफिकेशंस थे भी, उसकी गर्दन ऊंची क्यों है जी, नोस्टनल उसके लंबे क्यों हैं, चौड़े क्यों हैं जी, और जो उसके पैर जिस हिसाब के आज हैं, जो सुंब जिस हिसाब का आज है जी, वो उस हिसाब का क्यों है। मारवाड़ी ब्रीड जो डेवलप हुई है, जो आज हम मारवाड़ी देख रहे हैं एज ए ब्रीड, तो उसके हर बॉडी पार्ट का एक फंक्शन था जी। तो जैसे मारवाड़ी के लेजेंडरी ब्रीडर्स हैं, वो बताते हैं कि गर्दन अपने सवार को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊंची थी जी, ज़्यादा दूर तक देखने के लिए। एग्जैक्टली जी। और जो मारवाड़ी के कान हैं वो जो अपने एक्सिस पे घूमते हैं जी, वो मेन ये होता है कि पीछे से कोई आ रहा है उसको पता करने के लिए, क्योंकि लड़ाई में ऐसे होते हैं ना, चारों खानों से चौकन्ने नहीं होंगे तो कौन कहाँ से वार कर देगा किसको क्या पता। तो कान का जो था अभी अपने एक्सिस के ऊपर घूमते हैं आगे पीछे, न कि ये यूं घूमते हैं, अपने एक्सिस पे ही घूमेंगे। तो हर पार्ट का एक काम था। मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि मारवाड़ी का कान ऊंचा इसीलिए चला गया कि जो रेगिस्तान की जमीन थी वो ऊंची नीची थी और गर्दन भी इसीलिए ऊंची चली गई कि घोड़े को ऊंचा दिख सके, दूर तक दिख सके। और घोड़ा देखिए कि घोड़े के कान भी ऊंचे इसीलिए चले गए कि वो दूर तक सुन सके। हाँ, सुन सके। और दूसरे जो समतल घोड़े थे उनके कान ऐसे ही रह गए नीचे, क्योंकि उनको ज्यादा दूर तक ऐसे ही दिख सकता था। बिल्कुल। तो जैसे जैसे मारवाड़ी डेवलप होते गए, जो काम के घोड़े थे या जिन्होंने काम किया लड़ाई में, या जो बहुत सूटेबल घोड़े थे, उन्हीं घोड़ों से आगे ब्रीड बनी, सुधार होता गया। तो एक नस्ल का जो रूप आया वो इतना रिफाइंड और इतना बढ़िया आया कि अपने सवार को प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि घोड़े का मतलब एक आदमी की जिंदगी से था। अच्छा घोड़ा अपने सवार की जिंदगी बचाएगा। लड़ाइयों में बहुत सारे घोड़ों का कितना ज्ञान वो बखान है, क्योंकि उन्होंने अपने सवारों को बचाया है। तो मारवाड़ी एक वॉर हॉर्स होते हुए इंटेलिजेंसी के मामले में आई थिंक वर्ल्ड में कोई घोड़ा नहीं है जो मारवाड़ी को इंटेलिजेंसी के मुकाबले में सामने खड़ा हो सके। ऐसे घोड़े हैं जो लड़ाई में मालिक गिर गया, कट गया, या मालिक
अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहा तो वहां से, या गिर गया तो वहां से निकाले हैं घोड़ों ने, खुद भी लड़े हैं, पीछे से भी लात मारी है, आगे से भी लात मारी है, काटा भी है उन्होंने, क्योंकि मारवाड़ी का जो बेस है वो तेजई है। क्योंकि मारवाड़ी में एक इतना बड़ा करेक्टर है तेजई। तेजई का मतलब ये नहीं है कि भाई वो बस पूरे दिन परेशान करे। तेजई का मतलब ये है कि उसमें स्टेमिना हो और एंडोरेंस हो, और जहां उसको नीड है वहां वो अपना बेस्ट दे, मतलब सुस्त ना रहे। वो जो तेजाई है वो खत्म हो रहा है अभी। आज तेजी खत्म हो रही है। आज आप देखो भाई, क्या बताऊं, अब मैं शो में जाके मान लो देख रहे हो तो घोड़े जाके खड़े हो गए, उनको कुछ करना नहीं है, बस एज ए स्टेचू। अगर आपको खड़े और स्टेचू चाहिए तो आप बुत क्यों ना बना लेते, घोड़े क्यों पालते हो? घोड़े में जब तेजे ही नहीं है, मारवाड़ी में घोड़े का मतलब, यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं वो घोड़े का मीन मारवाड़ी से ही रहेगा हमेशा। तो जो घोड़े में अगर तेजे ही नहीं आई, मारवाड़ी में तेजे ही नहीं आई, तो फिर मारवाड़ी काहे का हुआ? फिर तो जो थोरो ब्रीड है, बाहर की ब्रीड है, वो पालो, बहुत अच्छे हैं, खड़े भी अच्छे लगते हैं, 2 घंटे तक रखोगे तो भी खड़े रह लेंगे, खड़े रहेंगे। हाँ, वो बदमाशी नहीं करेंगे। वो आज जिसको हम बदमाशी कह रहे हैं वो एक्चुअल में तेजई है, और वो लड़ाई में एक बेस था, पिलर था फाइट में। वो जब लड़ाइयाँ हुआ करती थी तो उसी तेजई की जरूरत थी। तो देखिए भैया, दूसरी बात ये भी है ना कि मेरे पास 3 घोड़े हैं जी। मेरे को सबसे ज्यादा मजा उस घोड़ी पे बैठने का आता है जो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं 10-20-30 मिनट बैठा हूँ इस पे। बिल्कुल। जो आपने बहुत अच्छी राइड कर ली तो आप स्कूटर से, मोटरसाइकिल से जा सकते हो। जा सकते हैं स्कूटर मोटरसाइकिल, आज तो हमारे पास साधन है ना। राइड का जो एक ऐसे होता है कि पीस हार्मोन होते हैं, तो जो पीस हार्मोन है या सेटिस्फिकेशन के हार्मोन है, वो जो मारवाड़ी की राइड में या भाई मारवाड़ी के साथ मिलते हैं ना, सबका अपना अपना टेस्ट भी होता है, बट मेरे को किसी दूसरी ब्रीड के साथ वो नहीं मिलते। और मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन पीपल में उसी चीज से मिलते हैं सबको, पीस हार्मोन। हम तो वो लोग हैं ना जिनको हर चीज मतलब सेटिस्फिकेशन वाली होनी चाहिए। भैया एक बात और भी है, बहुत लोग देखिए 2 तरह के घोड़े हैं। बहुत बार जो पंजाब के घोड़े हैं, जब पंजाब से जो लाइनें चली हैं तो उनके पाँव बहुत बड़े जी, और जो मारवाड़ के घोड़े हैं उनके पाँव, सुनने में आया कि उनके पाँव छोटे होने चाहिए जी, ताकि वो डेजर्ट में अच्छी तरह से निकल सके बाहर। बिल्कुल भाई, जो ब्रीड जहाँ डेवलप होती है, अगर उसकी बॉडी एनाटॉमी, उसकी बॉडी उस जगह के लिए अच्छी है, उस जगह के, जैसे कि समतल के मान लो कि हार्ड है तो सुंब अलग होंगे, खड़े होंगे, गोल होंगे। और अगर मारवाड़ में रेतीली मिट्टी है, रेत है, सैंड्यून से टीले हैं, तो वहाँ ऐसे सुंब होने चाहिए जो उस रेत में जाके फंसे ना और निकले न कि उसमें जाम हो गए। आप देखो ना कि अगर रेत में जा रहे हैं, भारी जूते पहन के जा रहे हैं, या फिर जूते जो रेत में धस रहे हैं, जूते के सोल होंगी तो वो काम नहीं देंगी। मारवाड़ की ऊंट गाड़ियां भी देखोगे ना तो उनके जहाज के टायर होते हैं बगैर गुड्डी के, मोटे चौड़े टायर होंगे और उनके ऊपर गुड्डियां नहीं होंगी। जुत्ती मारवाड़ में कामयाब क्यों है? हम सोल वाले जूते क्यों नहीं पहनते, हाइकिंग वाले जूते क्यों नहीं पहनते? मारवाड़ में जुतियां पहनते हैं क्योंकि जुत्ती के नीचे गुड्डी नहीं है, समतल है जुतियां। आप कभी भी देखना, जिनको मोजरी बोलते हैं जी। मतलब जो उसका चौड़ा पाँव है जी, वो है समतल जमीन के लिए है, जो कठोर जमीन है, कठोर जमीन के लिए, कठोर के लिए उसका चौड़ा पाँव है। और जो मारवाड़ का असली पाँव है वो छोटा, बहुत छोटा भी नहीं, एक मीडियम साइज का है जी, बहुत बड़ा भी नहीं कि थोरों के जितना बहुत चौड़ा हो, और बहुत पतला भी नहीं कि जो 4 नंबर की खुरी लगती है 4.5 की लगती हैं, वो भी नहीं है। 5.5 की जो खुरी लगती है ना, मारवाड़ी का वो पैर बेस्ट है। भैया एक बात और बताओ कि आपने घोड़ा रखा है जी, आपने इसमें क्या देखा, कि आपको क्या लगता है कि ये मारवाड़ी का क्या पूरा करता है? एक्चुअली मैं एनाटॉमी की, मतलब मैं जो भी चीज़ मान लो रखता हूँ तो सबसे पहले मैं मेहनत करता हूँ 1.5 साल एनाटॉमी के ऊपर, कि क्या हो कि वो क्लोज टू ब्रीड हो जी। देखो मेरी नज़र में प्योर नाम की कोई चीज़ नहीं है जी, तो लेकिन एक स्टैंडर्ड होते हैं एक ब्रीड के, कि ये सारी चीज़ें होंगी तो वो चीज़ ब्रीड के क्लोज होगी जी। तो जहाँ से मैं सीखा हूँ, मैं मारवाड़ में जाके कुछ पुराने लोगों के साथ उनके घर पे रह के 10-10 दिन तक इतनी तपती गर्मी में वहाँ रहा, वहाँ सीखा। तो मारवाड़ी की जो बहुत सारी एनाटॉमी है वो कहावतों से आती है जी। तो अब मैं तो रह गया हरियाणा का जी, तो मैंने मारवाड़ी आती नहीं, तो वहाँ भाई जो मेरे सीनियर हैं उन्होंने
बताई हैं चीज़ें जी। कि हिंदी में कन्वर्ट कर करके बताई, उनसे समझा, एक ओल्ड एज से सीखा, फिर दूसरे ओल्ड एज से सीखा, लोगों ने चीज़ें सिखाई, फिर कुछ मेरे दूसरे मेंटर्स हैं जो मारवाड़ी जजिंग करते हैं, उनसे सीखा। फिर मेरे को एक दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हुई कि अगर घोड़े में ये सब कुछ है जी। तो वो एक मारवाड़ी के क्लोज है जिसको हम मारवाड़ी बोल सकते हैं। और अपने बछेरे में आप देखो कि कितना पतला मुंह है। ऐसे कहते हैं मारवाड़ी भाई अपने चड़ू में पानी पीना चाहिए, थोड़ी इस यहाँ पानी पीना चाहिए, तो अपने वाले का तो मुंह इससे भी अंदर ही आएगा। हाँ, तो हाथ में पी सकता है आराम हाँ, से। कान एक्सिस के हैं अपने वाले के। जो मारवाड़ी का मेजर करेक्टर है, पतली गर्दन, लंबी गर्दन, मोर जैसी गर्दन, वो अपने में है कि अगर छोटी गर्दन है, भारी गर्दन है तो झोटे पाल लो ना, थोरो पाल लो, मारवाड़ी में क्यों जा रहे हैं। तो पुट्ठे अपने के कितने बढ़िया हैं और टॉप लाइन कितनी क्लियर है। तो वो जो एक फ्रेम है, जो सुम्ब है, पैर है, पैर की एंगुलेशन है, टेल है, जहाँ पे टेल जॉइंट है, वो जो सारी चीज़ें, क्रूप है, वो बहुत क्लोज टू मारवाड़ी, अच्छे मारवाड़ी जिनको हम मारवाड़ी बोलते हैं वो है। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरा घोड़ा 70 इंच का होगा। माइट बी पॉसिबल, इजी एक्वाइन ग्रोथ हार्मोन देकर इसके बच्चे 70 के जा सके, माइट बी पॉसिबल, बट मैं उस फील्ड में जाना नहीं चाहता कि भैया जो लोग ग्रोथ हार्मोन दे के अभी लोगों ने मैंने देखा है कई नुकरे घोड़े ऐसे 70 इंच के घोड़े कर रखे हैं अभी जी, तक। जी बोलते हैं कई, तो बोलते हैं कई, कर भी रखे हैं। हाँ भाई, वो ग्रोथ हार्मोन देने के बाद वो क्या होता है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जी कि वो घोड़ा 70 इंच का हो तो गया, जी वो बच्चे 60 के भी नहीं पैदा करेगा। भाई, जेनेटिक्स तो वही है ना, मेन तो खून, वो डीएनए पे जो इंफॉर्मेशन जा रही है जी। वो तो 60 इंच की जा रही है। वो खुद बड़ा हो गया, चलो उसका बड़ा सर हो गया, बड़ा मुंह हो गया, बड़ी साइज होगी, बड़ा हार्ट हो गया, बड़ा लीवर हो गया, क्योंकि हमने ग्रोथ हार्मोन दिए हैं, तो वो सब कुछ बड़ा हो गया मान लो उसका। बट उसके जो जीन है, जीन पे जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है वो अपने एंसेस्टर्स की, वो तो वही है ना जो एक्चुअल है। फिर उनके बच्चों को अगर जीएच दोगे तो वो भी जाएंगे, जीएच ना दोगे तो वो तो जितने में होने ओरिजिनली वही होंगे। अब होता क्या है कि दे दिया जीएच और नाम बता दिया उसका डाइट हार्मोन डाइट का, कि हमने अच्छी डाइट देख के, अगर डाइट से ही कुछ होता होगा, मैं ये नहीं कहता डाइट से कुछ भी नहीं होता, बट अगर सिर्फ डाइट से 62, 63, 64 के घोड़े के बच्चे 70 पे जाते हो, तो आप काठियावाड़ी को 70 का करके दिखा दो ना, सिर्फ डाइट से होता हो तो। बाकी खेल कुछ और भी हैं, पिट्यूटरी का भी खेल है, पिट्यूटरी पोस्ट लेटर का है, पिट्यूटरी प्री लेटर का है। मोस्ट ऑफ द हाइट का जो मेजर पिट्यूटरी ग्लैंड से हाइट आनी होती है, उसके हार्मोन से आनी होती है। तो पिट्यूटरी पिट्यूटरी के 2 पार्ट मेजरली काम करते हैं, एक पिट्यूटरी प्री लेटर, एक पोस्ट लेटर। जो प्यूबिक एज से पहले की जो हाइट होती है वो पिट्यूटरी प्री लेटर से आती है। फिर क्या करते हैं, हार्मोन दे के, कुछ होम्योपैथी की दवाई दे के, जब एक प्यूबिक एज के बाद की स्टेज आती है, उस टाइम पे पिट्यूटरी पोस्ट लेटर पे बहुत सारा काम करती है दुनिया। तो उसका रीज़न ये होता है कि फिर घोड़े हाइट बहुत जल्दी निकालते हैं। बट जो मेजोरिटी ऑफ हाइट निकालते हैं, लोग कहते हैं ना कि अदंत बछेरा मेरा 65 का चला गया, 67 का चला गया, वो जो 10-11 महीने की एज से, क्योंकि थोरो इंडस्ट्री वाले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, 10-11 महीने की एज के बाद जो वो जीएच यूज़ करना शुरू करते हैं, एक्वाइन जीएच, एक्वाइन ग्रोथ हार्मोन, तो वो उसका खेल होता है। ऐसे वो बंगाल वाला डायलॉग नहीं है कि खेला हो गया, तो वो खेला ईजीएच का है, एक्वाइन ग्रोथ हार्मोन का। हाँ भैया, अब थोड़ी बात, अभी आपका बच्चा ब्रीडिंग के काबिल हो चुका है? मेरी नज़र में हो भी गया, थोड़ा वेट कर ले तो भी चलेगा। छोड़ सकते हो आप? बिल्कुल, मैं तो छोड़ूंगा। कितनी फीस? मैं बहुत राइजनेबल फीस लूँगा। देखो मैं लूँगा, देखो फीस बेसिकली मैं बोलूँगा 51,000 लूँगा, 51,000। बट अगर मेरे को कोई ऐसा बंदा मिला कि मान लो घोड़ी अच्छी है और वो नीडी है, तो मैं रखने का भी मेरी जेब से लगा सकता हूँ। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ। तो रेकी में क्या होता है कि हम कुछ भी करते हैं तो हमें उस चीज़ का फीस लेनी होती है। फीस मैं भी लेता हूँ, लेकिन मेरी फीस होती है कि किसी भी नीडी की नीड पूरी कर दो, मेरी फीस आ गई। मान लो मैं फर्स्ट लेवल पे ट्यून कर रहा हूँ, सेकंड पे कर रहा हूँ, मास्टर ग्रैंड मास्टर ट्यून कर रहा हूँ, तो मेरी जो फी होती है वो ये होती है कि किसी भी नीडी की नीड पूरी कर दो। तो मेरी नज़र में ये है कि अगर एक्चुअल में कोई नीडी है तो भाई जितना तुम्हें ठीक लगे दे दे, अगर नहीं दे सकता तो भी कोई बात नहीं।
बट अगर मेरे को ये लग रहा है कि हाँ बंदा दे सकता है पैसे, देगा, तो फिर मैं क्यों 1000 रुपये लूँगा। हाँ भैया दूसरी बात, आपने बुली पे बहुत काम किया है जी। और बुली को मैंने तो ऐसा सुना है कि अभी लोग रखते नहीं है, पहले लोग उसके लड़ाई वगैरह कराते थे तो रखते थे जी। लड़ाई का काम बंद हो चुका है, बैन हो चुकी है। बिल्कुल सही बात है। अभी बुली किस लिए रखे हैं? आपने तो रखे भी बहुत कमाल के हैं, बहुत महंगे। मैंने तो सुना है आपके बारे में कि मैंने जब आपके बारे में पूछा था जी, तो लोगों ने बताया कि ये इंडिया का सबसे महंगे बुली बेचने वाला आदमी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब कौन खरीदता है इसको? बुली बेसिकली क्या है? बुली जी बुली एक फार्मर डॉग है जी बहुत पहले से फार्मर्स के साथ रहा है जी बुली ने बहुत पहले से। जो अभी तो मान लो चलो ठीक है सबके ठिकाने हो गए, जी गाय के रेवड़ होते थे, भेड़ बकरी के होते थे, या हमारे पास फेंसिंग नहीं होती थी, जी तो ये कुछ भी नहीं था। तो बुली प्रोटेक्ट करते थे किनको? जी फार्मर्स को, जी उनके जो एनिमल्स होते हैं उनको। जैसे गुजरात में बोलते हैं मालदारी, मैं अहीर हूँ तो गुजरात में मेरी कास्ट को मालदारी बोलेंगे। माल मतलब ये जो आपका ये होता है ना, गाय भैंस, ये सब कुछ। जी। तो जो हमारा माल होता है यानी एनिमल होते हैं, हमारी मेन जो पूंजी होती थी वो एनिमल से होती थी। आज भी अफ्रीका में जो मेन पूंजी होती है सोने की बजाय एनिमल होती है। जी। तो वो हमें हमारी पूंजी को प्रोटेक्ट करते थे। जी। तो उसकी जो डेवलपमेंट हुई है लोगों ने फाइटिंग में यूज़ किया, क्योंकि अगर एक सेफर्ड है 500 गाय है यहाँ से वहाँ लेके जा रहा है, वो 100 कुत्ते नहीं रख सकता। उसके पास एक कुत्ता हो जो 10 कुत्तों से उसको प्रोटेक्ट कर ले। तो प्रोटेक्ट कब करेगा? जब वो खुद लड़ेगा, लड़ाका होगा। तो बुल्ली में जो ब्रीडिंग हुई जी वो उसी हिसाब से हुई है कि लड़ने वाले कुत्ते तैयार हुए, जो आदमी से भी लड़ सके और कुत्तों से भी लड़ सके, भेड़िए से भी लड़ सके। क्योंकि भेड़िए तो अभी नहीं है, पहले तो ये इलाके में भेड़िए थे, बेड़े थे, पहले तो नार भी थे जी, लेपर्ड भी थे, टाइगर भी थे। तो मैं ये नहीं कहता बुल्ली टाइगर को मार देगा, लेकिन वो कम से कम लड़े तो का ना, रोकेगा। तो बुल्ली मैं क्यों पालता हूँ? मैं इसलिए पालता हूँ कि जो बुल्ली एक एडिक्शन है, नशा है जी। मेरे लिए। बुल्ली कुछ वैसा ही है जैसे कि अल्कोहलिक लोगों को शाम को कीड़े नहीं काटते हैं दारू पीनी हमने जी, अमलिया ने अमल के कीड़े काटेंगे, अमल खाना ही खाना है। तो मैं एडिक्टेड हूँ बुल्ली का। कितने रखते हो आप? आपके पास कितने? हाल फिलहाल यहाँ 4 बड़े मेल हैं और भैया मेरे को एक बात और बताओ, 2 फीमेल हैं जी। आपके कुत्ते महंगे क्यों हैं? इतने महंगे क्यों बिकते हैं? अभी भी आपके कुत्ते महंगे बिकते हैं, इसका कारण क्या है? कोई और भी? मैं वो ऐसा बंदा कैसे हो सकता है मैं कि वो यार बंदा आपके हूँ कुत्ते बिक रहे हैं, लोगों के बिक नहीं रहे, लोगों ने छोड़ रखे हैं। जो 200 रुपये का बच्चा जब बुल्ली का था और आज मैं 2.5 लाख रुपए तक का पप्पी सेल किया है। जोगी है, जोगी की स्टड फी 2.5 लाख रुपए है जी। तो वो क्यों है? जी। सबसे पहले मैंने ब्रीड पे काम किया, एनाटॉमी पे काम किया। बुल्ली में जो मेजर इशू आते थे, डीफ का आता था, एचडी का आता था, ईडी का आता था और चेरी का आता था, आई का इशू आता था, मैं उन पे काम किया है। और फिर बेसिकली मैं डीएनए कराए हैं, 4-5 जनरेशन के मेरे डीएनए हैं मेरे बुल्ली के, इंक्लूडिंग मेरे को डीएनए मेरे बुल्ली के डीएनए प्रिंट है। मारवाड़ी वालों के तरीके से नहीं है कि जी आपका डीएनए हो गया, मैच हुआ या नहीं मैच हुआ, मतलब एक अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है जी। तो मेरे पास डीएनए प्रोफाइल है। इवन मेरे पास ये है कि किस पैनल पे जी आपके कुत्ते का हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसकी प्रोफाइलिंग की है जी, कि कल को दूसरे पैनल से मैच हो तो भी वो मैच करा सकें। बाहर की लैब से मैच कराता हूँ। फिर जो मेरा एक बहुत बड़ा इनिशिएट है कि मैं मेरे क्लाइंट को हेल्दी कुत्ता सेल करना चाहता हूँ, हैंडीकैप नहीं। हेल्दी में और हैंडीकैप में दिन रात का फ़र्क है, सुबह का सूरज और शाम के सूरज का फ़र्क है। कैसे? मान लो मैं एक्स अमाउंट लेता हूँ, कोई भी एक अमाउंट लेता हूँ कुत्ते की। अगर वो कुत्ता, पहले तो बात कोई भी लेता है तो एक सपना खरीदता है कि आने एक फैमिली मेम्बर खरीदता है 10 साल 12 साल, और उस कुत्ते को एचडी आ गया, हिप डिस्प्लेशिया आ गया, पैर पीछे वाले काऊ होक आ गए, आगे वाले पैर खराब आ गए, या डीफ आ गया जी, या दिखने में प्रॉब्लम आ गई, तो कोई भी 1 रुपया दे रहा है या 1 लाख दे रहा है या 10 लाख दे रहा है, मैटर ये नहीं करता। मैटर करता है कि कुछ पे तो कर रहे हैं ना। और हैंडीकैप के लिए पे क्यों करे? गलत चीज का पैसा क्यों दे? मैं पैसा लेता हूँ, ठोक के पैसा लेता हूँ, लेकिन मैं चीज़ ठोक के देता हूँ। मेरे हर क्लाइंट को मैं ये बोलता हूँ कि मेरी दी हुई चीज़ में कोई भी जेनेटिकल फॉल्ट हुआ, बाई बर्थ कोई फॉल्ट हुआ, कोई भी ऐसा डिफेक्ट जो आपने लिया उससे पहले की वजह से है, उसके जीन्स की वजह से है, उसके बाई बर्थ डिफेक्ट है, क्योंकि बाई बर्थ तो ह्यूमन भी कई बार डिफेक्ट में आ जाते हैं,
तो आपको पैसे नहीं देने। अगर ऐसा नहीं है कि डिफेक्ट एकदम आता है, HD ED जाके 14-15 महीने पे भी शो होते हैं, HD 8 महीने पे शो होते हैं। तो पप्पी लेके गया कोई मेरे से 2 महीने का, 8 महीने बाद उसमें HD आ गया इन केस मेरे से या किसी से भी, तो बायर की क्या गलती है कि उसने पैसे देके हैंडीकैप खरीदे? वो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कुत्तों की मैं लेता हूँ कि अगर मेरी ब्रीडिंग के किसी में भी कोई दिक्कत आई, देन आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल। इधर मैं पैसे रिटर्न करूंगा और मैं आपको नया पप्पी दूंगा, वो आपकी चॉइस होगी बायर की। भैया मैंने बशेरा बेचा अपना जी, तो मैंने वीडियो में भी बोला जी, कि इसको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए पूरी जिंदगी में, जी, तो मैं आपके पैसों का देनदार बैठा हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको सोना बेचा है। बिल्कुल, पैसे तो सोने के लिए हैं। हाँ, सोना ही है, जी, तो सोना लगे तो रख लो, बिल्कुल, किसी वक्त भी जिंदगी में चांदी लगे तो पैसे वापस ले जाना, किसी बहुत वक्त भी अच्छी चांदी बात है। लगे। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि एटलीस्ट किसी ने तो मारवाड़ी में ये इनिशिएट किया। मैंने अपना बच्चा बेचा और ये कह के बेचा कि पूरी जिंदगी में कभी, जी, और ऐसा भी बोला, जी, अभी भी बोल रहा हूँ जी, कि इसको मैस हैपन हो जाए, इसकी टांग टूट जाए, जी, इसका कुछ और हो जाए, जी, तो तभी भी मेरे को तो आप घोड़ा वापस कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए खरीदा हुआ प्रोडक्ट है, मेरे लिए मेरा बच्चा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि आप ये लंगड़ाता कहीं चलता फिरता रहे बिल्कुल, और मेरा बेचा हो, मैं पैसे खा के आराम से घर में बैठा रहूं। बिल्कुल। और बहुत लोग जहां 35 लाख 40 लाख लेके 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन बकवा देते हैं, बिल्कुल, और बाद में दूसरे लोग बोलते हैं ये तो टट्टू है, जी, और 35 लाख ले रखा है, 34 लाख वापस कर दो यार, आपने सोना बेचा है। बिल्कुल, आपके सोने की तो कदर आप ही लोगे ना। हाँ, आपने कल तक सोना बेचा है 35 लाख का, 34 लाख में ले लो, 30 लाख में ले लो, आज वो खोट कहाँ से निकल आया? हाँ, या तो पहले ही सोना नहीं था, हाँ, और अगर सोना बेचा है तो अब खोट कैसे आ गया? हाँ, आपने करोड़ का बेचा, 50 लाख 70 लाख का बेचा है, बेचो, जी। उसको वापस लेने की हिम्मत रखो। अगर वापस लेने की हिम्मत ना है तो मेरे हिसाब से ब्रीडिंग नहीं करनी चाहिए, या एनिमल के सेल परचेज या एनिमल के ट्रेड में ना होना चाहिए। आप असली हो, आप उस ब्रीड के लवर ही नहीं हो, अगर आप उसी कीमत में घोड़ा वापस नहीं ले सकते, फिर कोई तो भी कट्टू का काम कर लो, बकरे लाओ काट के बेच दो। हाँ, बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलकर भाई, अच्छा लगा। बिल्कुल भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने घोड़ों में अच्छा कदम रखा है, और मेरे को लगता है कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, बातें भी अच्छी लगेंगी। आई होप कि लोग समझें कि एटलीस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें, और EGH या पिट्यूटरी पोस्ट लेटर या प्री लेटर पे काम करके हाइट बढ़ा के जो एक स्पेसिमेन आप क्रिएट कर रहे हो, वो आगे चल के ना ओवरऑल एक ब्रीड मारवाड़ी जिसको बेच के अपन सब पैसे कमा रहे हैं, उसको गड्ढे में धकेलेगा। मारवाड़ी शुड बी लुक लाइक ए मारवाड़ी, नॉट लाइक कि बड़ी बड़ी भारी भारी गर्दन है, छोटी गर्दन है। एटलीस्ट मारवाड़ी के जो करेक्टर हैं, स्टैंडर्ड बनाए हैं या जिन स्टैंडर्ड को हम फॉलो कर रहे हैं, एटलीस्ट मारवाड़ी वैसा दिखना चाहिए। जो चीज़ जैसी है वो वैसी दिखनी चाहिए। अगर वो वैसी नहीं दिखेगी तो फिर ब्लड लाइन का, पेडिग्री का, या आपने जो GH दे दिए, EGH से बड़ा कर दिया या फैट कर दिया, या आपने सुम बढ़ा के हाइट बढ़ा दी, वो फैट से 1-2 इंच हाइट ले ली, 2 इंच 3 इंच सुम से हाइट ले ली, एक्चुअली वो क्रूरलिटी है। तो उनका फायदा क्या है? हम वैसे तो हम धर्म कर्म करेंगे, जो चीज़ हमें पैसा दे रही है, फेम दे रही है, नाम दे रही है, जिस चीज़ की वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं, हम उसी के साथ ईमानदार नहीं है, तो फिर हम ईमानदार किसके साथ होंगे? देखिए भैया, एक होता है खेल, एक होता है खिलवाड़। एग्जैक्टली, ये खेल नहीं है, खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। और खिलवाड़ का रिजल्ट है ना, हो सकता है थोड़ा सा 2-4 साल बाद आए, बट बहुत गंदा आएगा, बहुत गंदा। जो आज भी खेल कर रहे हैं, जो एक्चुअल ब्रीडिंग कर रहे हैं, उनके घर पे भी आप जाके देखोगे तो इतने सुंदर स्पेसिमेन मिलेंगे। वो 68 इंच के 72 इंच के नहीं मिलेंगे, वो आज भी 62, 63, 64 के मिलेंगे, लेकिन वो घोड़े देख के आपको ग्रेस आएगी। आज हम जिन लाइनों का जिक्र करते हैं या जिन लाइनों को फॉलो करते हैं, उन लाइनों में पीछे कितने घोड़े हैं? या आज हम देखते हैं कि भाई फलाने मालिक का घोड़ा इतना सुंदर है, वो घोड़ा कौन सा 65 इंच का है? जिन घोड़ों की आज
फी अच्छी है, जिन घोड़ों के बच्चे लेने के लिए हम तरसते हैं या बहुत मोटा पैसा देते हैं, वो घोड़े कौन से 65 इंच के हैं? पर नहीं भैया, घोड़ों की बात करो तो आप तूफान घोड़ा, आलीशान घोड़ा, वो सुंदर घोड़ा था, अति सुंदर उसका बच्चा, वो बहुत मतलब एक लिमिट साइज के घोड़े थे। और लेकिन मारवाड़ी की बहुत ग्रेस कमाल। आती है उन घोड़ों में। हाँ, बहुत कमाल के घोड़े। ऐसे मतलब ना दिल भरता है कि ये घोड़े देख, अरे भाई बहुत सोना मारवाड़ी देखा। और ये बड़े बड़े देख के क्या फील हुआ यार, क्या करती है, कान अंदर घुसाए हुए थोड़े खड़े कर दिए। बोता टाइप आप ऊँट बोल सकते हो उसको। एटलीस्ट ऊँट की गर्दन तो लंबी होती है, पतली तो होती है, उनकी तो गर्दन भी लंबी कौन है। और ना भैया पता है कि जब किसी घोड़े को आप ग्रोथ हार्मोन दे दोगे ना जी, तो उसकी बॉडी को भी नहीं पता चलता कि कहाँ से बढ़ना है, वो अपसेट हो जाता है, अंदर का सिस्टम अपसेट हो जाता है, उसको पता नहीं, भागा दौड़ी अंदर चलती है, उसको पता नहीं चलता। कई बार कहीं की हड्डियाँ बढ़ जाती हैं, कहीं की छोटी रह जाती हैं, कहीं के कान, ये नहीं पता कि कान एक दूसरे के ऊपर चले जाएं, ये नहीं पता कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे, कोई पता नहीं चलता उसको। इतने बड़े बड़े मुंह के जो घोड़े देख रहे हो, हाँ, इतने बड़े मुंह के, और इतने भारी भारी आगे से जो मजल है वो भी इतनी भारी भारी कि तसड़े में पानी पिलाओ तो ना आए। वो जीएच का ही तो खेला है ना। उनके माँ बाप वही थे, सुंदर थे, पतले मुंह के थे। भैया आप सुना होगा आपने भी कि 30 साल का 25 साल का घोड़ा आराम से हो जाता है। आराम से होता है। बहुत बड़ा घोड़ा 11-12 साल में बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसका उठने लायक नहीं रहता वो। और मालिक को बहुत जल्दी पड़ जाती है 5 साल का होने के बाद। जब ना वो उठता है तो उसका तड़क तड़क होती है ना जोड़ों में, तो वो समझे तला है कि अभी बेच देना चाहिए। बिल्कुल, वो मार्केट में ग्राहक ढूंढना शुरू कर देता है कि बिक जाए टप जाए कैसे भी। इसका आधे से ज्यादा उम्र तो ले ली। अब देखो बुल्ली में भी यही है, ऐसा नहीं है कि बड़े बुल्ली नहीं है जी। बड़े बड़े बुल्ली हैं, लेकिन पता चलता है वो साल भर के जवान हो गए, 2.5 साल के मैच्योर में हो गए, और 3.5-4 साल के जाते जाते थैंक यू बोल गए। यहाँ गब्बर खड़ा है, 8.5 साल का कुत्ता खड़ा है, बता ही नहीं सकता 8.5 साल का है। एंजल खड़ी है 10 साल के आजू बाजू की खड़ी है, बिल्लो है 7 साल के आजू बाजू की खड़ी है, जोगी है वो 7.5 साल का कुत्ता है। अभी मैच्योर तो मैच्योरिटी की एज में होगा ना। अगर हम जब 10th क्लास में थे, किसी बच्चे की दाढ़ी आ गई, मूंछ आ गई, वो बड़ा बड़ा दिखने लग गया, तो हम अंकल कह के चिढ़ाया करते थे। और वही जो मैच्योरिटी कॉलेज में आई है, वो आज भी जितना एक एज पे काम होता है, जब अर्ली स्टेज पे मैच्योर होगा तो बुढ़ा भी जल्दी होगा, मरेगा भी जल्दी। और जो अपनी एज पे मैच्योर हुआ, टीन एज के बाद में मैच्योर हुआ 25-27 पे, वो बुढ़ा भी जाके 45-50 साल का वो मैच्योर दिखेगा। और वो 65-70 पे जाके वो थोड़ा थोड़ा ओल्ड एज दिखना शुरू होगा। और जो हमारे क्लास में जो 10th में बड़े बड़े दिखते थे, वो अब दादा की उम्र के हो रखे हैं। ऐसे लगता है यार तू ऊपर से नीचे तक दौड़ा हो गया यार, फर्क तो पड़ता है, बुढ़ापा दिखा गया। हाँ, फर्क तो